کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار کبھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی ایک کلپ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا، ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا ہے، لہٰذا آپ اس کلپ کو پورا ضرور سن لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو سنیں ناظرین مفتی سلمان اظہری صاحب کی اس کلپ کو۔ عزیزان گرامی وقار، خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ کبھی ہم لوٹائیں گے نہیں تمہیں؟ یہ دونوں خیالات تمہارے غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا۔ اس نے ایک مچھر کو بھی عبث نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ عزیزان گرامی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا۔ بے شک، بالکل صحیح بات۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو۔ دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے، بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ بالکل۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بالکل۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا ہے تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے،
मैं इस दुनिया में सारी सहूलतें खा पी करके इस्तेमाल करके क्यों रह रहा हूं? कोई तो मकसद होगा। मिसाल के तौर पर आपको अचानक किसी ने 5 स्टार होटल में बुलाया, वहां पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे, बेहतरीन रूम है, आप गए और वहां के खाने भी इस्तेमाल करते रहे, वहां के रूम्स भी इस्तेमाल किए, वहां का पानी इस्तेमाल किया, जो जो सहूलियात थी वहां पर सब आपने इस्तेमाल किया। लेकिन क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आपको दावत किस काम के लिए दी गई थी? वहां पे उस 5 स्टार होटल में कोई पार्टी थी, किसी की शादी, किसी का वलीमा, किसी का अकीका, क्या था? क्यों बुलाया गया था आपको? क्यों बुलाया गया? एक बड़े फंक्शन हॉल में आपको क्यों बुलाया जाता है? आपको तो ये मालूम ही होता है, मुझे फलां की शादी में बुलाया गया, वलीमे में बुलाया गया, अकीके में बुलाया गया, मंगनी में बुलाया गया। आपको मालूम होता है क्यों बुलाया गया है। बगैर आपको मालूम हुए आप वहां जा करके मौज मस्ती करते रहे तो आपको पागल कहा जाएगा। इसे पता ही नहीं है यहां हो क्या रहा है, सिर्फ अय्याशी करने के लिए आ गए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम्हारे इस कायनात में जलवगर होने से पहले अल्लाह ताला ने क्या चीजें तुम्हारे लिए नहीं सजाई। ये जमीन का मजबूत बिछौना, आसमान का मजबूत छत बगैर पिल्लर का, ये कायनात में सरसराती हुई हवाएं और तुम्हारे लिए मुफ्त सांसें, तुम्हारे लिए पानी की फरावानी, रोशनी का इंतजाम, सोने के लिए अलग तुम्हें नींद के गलबे, भूख लगे तो खाने की तमाम चीजें, ये सब चीजें मुहैया कर दी गई। तो तुम आए क्यों यहां पर? इस कायनात में क्यों आए? क्या मतलब था, क्या मकसद था? इसी मकसद तख्लीक को कुरान कहता है सूरह ज़ारियात की आयत, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। समझ में आया कि हमें कायनात में अल्लाह ने अगर भेजा है तो उसकी इबादत के लिए भेजा है। अजीजा ने गिरामी, इसी बात को मैंने इससे कबल भी दोहराया था कि इंसान बाकी सारी चीजें कर लिया लेकिन जिस का मकसद के लिए वो आया था उसी में वह अधूरा रह गया। यानी इबादत, अल्लाह की रजा हासिल करना, ये सबका मकसद था, इसीलिए तुम्हें बनाया गया था। और आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये लाइफ बेकार की चल रही है और उसको इस तरह से गुजार रहे हैं जैसे लगता है कि कोई हल्की फुल्की चीज तुम्हारे हाथ में आई है। इतनी कीमती जिंदगी अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है कि अगर सांस तुम्हारी रुक जाए तो करोड़ों दे करके भी किसी डॉक्टर से सांसें वापस नहीं ला सकते। एक बार तुम्हारी धड़कन रुक जाए तो लाखों करोड़ों अरबों दे करके भी उस धड़कन को वापस नहीं ला सकते। इतनी कीमती लाइफ तुम्हारे हाथों में आज मौजूद है, लेकिन उसका मकसद ना समझ करके अपने आप को अय्याशियों में और बेकार जिंदगी में गुजारना, गोया कि इंसान का खुद अपने आप को धोखा देना है। मुझे बताओ कितने लोगों ने अपने आप को धोखा दिया? ये तो जुर्म है धोखा देना दूसरों को, लेकिन मैं समझता हूं उससे बड़ा जुर्म अपने आप को धोखा देना कि तुम पैदा किस काम के लिए किए गए थे और कर क्या रहे हो आज। मुझे बताओ ऐ बच्चों, जवानों, क्या तुम्हारी रातें इसीलिए बनाई गई हैं कि तुम रात भर बैठकर गेम खेलो? क्या तुम्हारी रातें इसीलिए हैं कि तुम किसी भी नुक्कड़ पर बैठ करके गप्पे लगाओ? क्या तुम्हारी रातें इसीलिए है कि लोगों के ऐब जोई करो? क्या तुम्हारे दिन इसीलिए हैं कि तुम अपने तबीयत और अपनी ख्वाहिशात के लिए डांस बार, कभी क्लब, कभी फलां जगह, नशे के अड्डे, ताश के पत्ते, शराब की बू, ये तमाम चीजें जिंदगियों में ऐसी लाई गई? क्या आपने कभी ये सोचा कि इसीलिए मैं दुनिया में आया हूं? नहीं मेरे अजीजों, किसी और ने नहीं, तुम्हें इस रास्ते पर तुम्हारे नफ्स ने धोखा दिया है, अपने आप को धोखा दे करके सिराते मुस्तकीम से हटा दिया है। अबस नहीं पैदा किए गए, बेकार नहीं पैदा किए गए। मैं तारीख की चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी तारीख रकम की है कि उनकी जिंदगी का एक लम्हा भी जाया नहीं किया उन्होंने। एक दिन तो दूर की बात, एक लम्हा जाया नहीं करते थे। इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला
कौन नहीं जानता इस इमामुल मुहद्दिसीन को। कुरान पाक के बाद सबसे अफजल किताब इस रुए जमीन पर वो बुखारी शरीफ, सही बुखारी। आप पढ़ने के लिए जब बैठते थे या अहादीस का मुताला करते तो रात पूरी गुजर जाती, थोड़ी देर आप आराम करते, उसके बाद जब मुताले के लिए बैठते तो फजर की अजान होने के करीब आ जाती और वो अहादीस पलटते रहते हैं और उसमें गौर व फिक्र करते रहते। पहले ऐसा होता कि सुबह सादिक जब हो जाए तो मुर्गे बांग देते। बांग देना समझते होंगे, मुर्गा पुकारता है। अब मुर्गों के पालने का भी सिस्टम खत्म हो गया है, सब देसी मुर्गों की जगह ब्रॉयलर चिकन ने ले लिया है। ये सारे तो जंगली कहलाने लग गए अब। हालांकि उसकी फजीलत आई है ये देसी मुर्गे की, उसको मारने से भी मना किया गया। कहा गया कि इसको अजियत ना दो, इसलिए कि लोगों को सुबह की अजान के तौर पर जगाता है। तो पहले यही होता था कि बराबर वक्त पर सुबह सादिक पर मुर्गा बांग देता और लोग यही समझते कि अब फजर का वक्त हो चुका है। वो बराबर फजर के वक्त पुकारता और उस मुर्गे पर लानत भेजी गई है जो आधी रात में पुकारता है। कहा गया वो शर है, वो शैतानी है। खैर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ लिख रहे थे या पढ़ रहे थे, मुर्गे ने बांग दी। तो जैसे ही मुर्गा बांग देता आप अपनी किताब बंद कर देते और मस्जिद की तरफ चले जाते। नमाज का वक्त हो चुका होता जब आप फजर की अदायगी के लिए आते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रात मुर्गे की आवाज सुनी, अपना मुताला बंद किया, अपनी किताब बंद की और निकल पड़े। मस्जिद आए तो पता चला अभी फजर का वक्त होने में काफी टाइम बाकी। काफी टाइम का मतलब आधा घंटा, आधा से पौना घंटा होगा, इतना वक्त बाकी था अभी तुलुए सुबह सादिक के लिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जलाल आ गया। हालांकि अगर कोई वक्त से पहले मस्जिद में आ जाए तो सवाब ही है, क्या खराबी है। बेशक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर जलाल में आए कि आकर के आपने एक जुमला कहा कि अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे। अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे जिसने मेरे मुताले के वक्त को बर्बाद किया, जो मेरी पढ़ाई का वक्त था, इसने उसमें से इसकी आवाज की वजह से मैं उठ गया, मेरा इतना वक्त इसने खराब किया। मुर्गा फजर की अजान से पहले खत्म हो चुका था, मर चुका था। सही बात। आपकी वालिदा माजिदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा माजिदा ने आपको नसीहत फरमाई और इरशाद फरमाया कि बेटा इसके बाद कभी किसी के लिए इस तरह का जुमला ना कहना, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी जुबान में असर रखा है। बताना मकसूद ये है मेरे अजीजों कि उनका कितना वक्त गया होगा, आधा से पौना घंटा, जिसके लिए वो इतने जलाल में आए कि उस मुर्गे को फिर कभी दोबारा पसंद नहीं फरमाया और वो खत्म भी हो गया। यहां तो पूरी की पूरी रातें जाया हो गई, बरस के बरस जाया किए, महीनों जाया किए और कभी उफ तक नहीं। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो वक्त है ये बहुत ही कीमती वक्त है अल्लाह को मनाने के लिए और उसको राजी करने के लिए। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाकर मकसद जिंदगी आपको बताना चाहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खमसिन। कयामत के दिन इब्ने आदम यानी हर इंसान, कोई इंसान के दोनों कदम हट नहीं सकेंगे अपनी जगह से। जो महशर का मैदान होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम, पूरे इंसानों में से किसी इंसान के दोनों कदम हटेंगे नहीं उस वक्त तक, हत्ता युसअलु अन खमसिन, जब तक कि उससे 5 चीजों का सवाल ना हो जाए, जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाए। वो 5 चीजें क्या हैं? ये तिर्मिज़ी शरीफ की सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन उम्रिही फीमा अफनाहु
सबसे पहला सवाल ये होगा कि अल्लाह ने जो तुझे पूरी उम्र दी तूने कहां कहां गुजारी, पूरा हिसाब दे दे। वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, दूसरा सवाल, हालांकि उम्र में ये सारी चीजें आ गई थी, लेकिन फिर खास एक सवाल ये करेगा रब ताला, सबको पहचान फी अन शबाबिही, तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। हर एक की जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि तूने ये कहां कहां गुजारी। और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, और उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि कहां से हासिल किया था। वफीमा अनफकहु, और कहां खर्च किया, ये चौथा। और वफीमा, और सवाल होगा वफीमा आमिल मिन अलिमा और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना उसने इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया था। ये 5 सवालात जब तक ना किए जाएं हर इंसान से कोई वहां से हटेगा नहीं। सबसे पहला सवाल उम्र के मुतालिक ही है। क्या हमारे पास इन 5 सवालात के जवाब तैयार हैं? नौजवानों तुम बताओ।